So hi and welcome to my YouTube channel Weird Tales. So today I'm making the most requested video of this channel, that is about SEBI strategy video. Um, this video is about phase 1 strategy, and after it I'll be making about phase 2. But this video can be a little longer. I don't know कितना time का बनेगा ये because I have not rehearsed. But this can be longer because I will try to tell you everything that I know in one single video. As I think I'll not be able to. I might not get time to make more such videos. So that's why I'll try to incorporate everything that I know in one single video, and it will be helpful to you. I definitely know that in clearing the exams. So studies start करने से पहले एक बात और I will tell you that in my last video I mentioned that I have started studying for phase 2 after phase 1. I hope कि no one is following that strategy. That is not the strategy. See, my case is exception because I have studied finance all my life, but I don't recommend these things because that's very tricky, and for an exam that comes for an exam that is so important and so prestigious, you should not take that much of risk. So I hope you all will start studying from the day one and put in all your efforts because it's highly competitive exam. Maybe not phase 1 like RBI grade B, but definitely phase 2. So you need to understand the competition. Where is your competition? सभी का मेन कंपटीशन होता है फेज़ 2. फेज़ 1 इज़ क्वालिफाइंग, एंड जो भी लोग फेज़ 2 में पास होने लायक है, डेफिनेटली दे विल क्लियर फेज़ 1 विदाउट एनी much effort, because phase 1 is really simple. The question level is very easy, and not talking about quant reasoning people can find it tough, the people who are from finance background, because ऐसा कोई हमारा तो होता नहीं था. So उसके लिए you have to work hard, but ऐसे you will find it very easy. But still I'll tell you that you should always keep your preparations very high, so that even if the exam is level is tough, you will sail through. Before starting with the strategy, I'll tell you about the exam pattern for phase 1. So phase 1 का जो एग्ज़ाम होता है उसमें 2 पेपर होते हैं. एक पेपर 1 that is of QRE and general awareness, and paper 2 that is of 6 subjects: commerce, accounting, management, finance, costing, companies act, and economics. So पेपर 1 में जो होता है वो 80 क्वेश्चन दे आस्क, 20 questions in each section, जैसे quant, reasoning, English and general awareness. And for paper 2 they ask 50 questions. हर क्वेश्चन 2 मार्क के होते हैं, and it consists of like 100 मार्क्स टोटल हो जाता है. एंड पेपर 1 में हर क्वेश्चन 1.25 मार्क्स के होते हैं, एंड टोटल कम्स आउट टू बी 100 मार्क. दोनों ही केस में 1/4 इज योर नेगेटिव मार्किंग, एंड पेपर 1 में यू हैव टू गेट 30% कट ऑफ, एंड पेपर 2 में यू हैव टू गेट 40% कट ऑफ. पर टोटल आपका एग्रीगेट फिर भी 40% होना चाहिए, दैट इज 80 मार्क. तो उसके लिए आपको या तो पेपर 1 में 40 लाना होगा, पेपर 2 में 40 लाना होगा, या फिर आप 30 ला पा रहे हो पेपर 1 में, तो पेपर 2 में 50 लाना होगा. अब ऐसा नहीं है कि आप गिन चुन के 80 चाहिए तो 80 ही लेके आना है, ऐसा नहीं है. आपको थोड़ा ज़्यादा टारगेट करना चाहिए, सो दैट इवन इफ़ यू मिस द टारगेट बाय सम फ्यू मार्क, आप फिर भी फेज 1 पार कर जाओ. एंड ऑल्सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको पेपर को पास करना है, ऐसा एग्ज़ाम देना है कि यू नो कि यू आर एनी वे गोइंग टू फेज 2, सो दैट यू डोंट वेस्ट योर टाइम. एंड बिकॉज फेज 1 एंड फेज 2 के बीच में ओनली हार्डली 1 मंथ रहता है, एंड सभी का जो मेन कॉम्पिटिशन है वो फेज 2 में है. इट इज़ रियली वेरी ब्रूटल, एंड अच्छे से अच्छे लोग दे गेट एलिमिनेटेड बिकॉज वेरी फ्यू पीपल गो इन फेज 3. ओनली 1:3 का रेशियो होता है. सो दैट्स वाई सजेस्ट कि आप फेज़ 1 एग्ज़ाम के बाद डोंट वेस्ट योर टाइम, बिकॉज फेज़ 2 में सब आता है, जैसे कि न्यूमेरिकल्स दे आस्क, एंड दे विल आस्क यू करंट अफेयर्स, लाइक वो जो फाइनेंस करंट अफेयर्स होते हैं ना, दे विल आस्क यू अप्रॉक्स 5-6 मार्क्स, बट दे विल आस्क यू. So even if you leave that, like I didn't study that part, but if you are leaving 5-10 questions like that, then बाकी जो 90 मार्क्स के क्वेश्चन है उसमें you have to give your best. मैंने 10 मार्क्स का उधर छोड़ दिया बिकॉज आई नो कि मेरे को करंट अफेयर्स पढ़ने का मन नहीं करता था उस टाइम पे. आज आई एम ओके विद दैट बिकॉज विद टाइम एंड टाइम आई हैव accepted the fact that if I want to excel in this regulatory body exams, I have to make current affairs my friend. Otherwise it's very tough. 90 marks में से I got 85.
All of those I'll tell in phase 2. This is phase 1 video, and I have already mentioned the exam pattern with you. You have to get 30% marks in paper 1, 40% marks in paper 2, and aggregate 40%, that is 80 mark. We will all target 100 mark in phase 1. Okay, if you target 100, we'll get 80, but if we target for 80, we might land in a 60, 70, 75, and we are out. ऐसा नहीं करना है. Okay, so starting with the subject wise strategy, phase 1, paper 1 is a QRE and general awareness. So general awareness first we'll start. General awareness में 20 questions they ask, 1.25 mark each, and 25 mark is the total weightage. So in this we have to target approx 5 to 10 mark, okay, only. Now why do I tell you to target? Because that is very easy to cover. Suppose if you are covering quant and reasoning level comes, और अगर आप उस चीज़ का लेवल अच्छा आ जाता है, what you will do? Nothing you can do. Okay, and there is also timing. जो 60 मिनट का टाइमर है, that is not sectional. वो ओवरऑल पेपर 1 का टाइमिंग है, जो कि आपका क्वांट रीजनिंग इंग्लिश जी, आपको माइंडफुली उसको खुद से ही चेंज करना है सेक्शंस टू सेक्शंस, सो दैट आप उस सेक्शन में जा सको जहाँ यू नो योर स्ट्रेंथ लाइज, एंड आप उस क्वेश्चन को अवॉइड करो. बट ये आपको खुद को करना होगा. ऐसा नहीं होगा कि आप क्वांट सॉल्व कर रहे हैं एंड रीजनिंग अपने आप आ जाएगा. ऐसा नहीं होगा. यू हैव टू गो टू द रीजनिंग क्वेश्चन. यू हैव टू माइंडफुल दैट यू नीड टू पिक दोज क्वेश्चन जहाँ आपको लगता है कि आपका मार्क्स अच्छा बनेगा. एंड पेपर 2 is of 40 minutes. तो 40 minutes is very much sufficient to answer 50 questions. And वो paper 2 I will talk little later in this video. But paper 1 I was talking about general awareness. So general awareness में the source can be Affairs Cloud PDF only for November and December month. November भी you can do only mid November से you can start. But if possible do from start November. बट उसमें भी ऐसा है कि इफ़ नॉट यू डोंट हैव टू कवर एवरीथिंग, यू हैव टू कवर द बेसिक करंट अफेयर्स. इवन इफ यू डोंट हैव एनी सोर्स, देन यू कैन जस्ट लुक फॉर द वीडियोज बाय परचम क्लासेस. परचम क्लासेस का जो करंट अफेयर्स रहते हैं, डेली करंट अफेयर्स, वो आप बस कवर कर लो थ्रू वीडियोज़. एंड ऑल्सो वॉच द डेली, द वीकली, द मंथली, एंड बाय सीइंग द ऑप्शंस यू विल बी एबल टू रिकॉल. यू कैन ऑल्सो मेक नोट्स ऑफ दैट, बट दैट इज सफिशिएंट. ईजिली यू कैन कवर. ऑल्सो 4-5 क्वेश्चन आते हैं फॉर ऑल ऑफ द अबव. जनरली ऑल ऑफ द अबव का जो आंसर होता है वो सही होते हैं. बट दिस अगेन इज अ ब्लाइंड गेस, बट यू कैन टेक दैट मच ऑफ रिस्क. बट अगेन इफ यू नो कि यू हैव नॉट अटेम्प्टेड सफिशिएंट क्वेश्चन आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल द 80 क्वेश्चन, यू थिंक दैट यू माइट फॉल शॉर्ट ऑफ दोज 30 मार्क, यू कैन ब्लाइंड शॉट अटेम्प्ट ऑल ऑफ द अबव. चांसेस है वो सही हो जाएंगे. अगर 5 ऑल ऑफ द अबव आते हैं तो मैक्सिमम आई एम टेलिंग कम से कम मिनिमम 3 तो ऑल ऑफ द अबव आंसर होता ही है. बट अगेन दिस इज अ तुक्का. यू कैन नलिफाई दिस प्लान ऑफ माइंड, बट ये वर्क करते हैं. सो बट ये तभी अटेम्प्ट करना जब आपको लग रहा है कि 30 मार्क्स आपको नहीं आएंगे. अगर आ रहे हैं तो फिर देयर इज नो नीड. व्हाई डू वांट टू एक्सेल व्हेन यू आर जस्ट you just need to qualify. So current affairs last 1 month, and source can be Persian classes. If you want to watch only lectures, you don't want to study anything. If you want to study, then study 1 month of Affairs Cloud PDF. That's all. So current affairs में if I talk about some few important topics, so general GK is important. No circulars, nothing like that. जो general current affairs होते हैं, that is more relevant, and no circulars, no regulatory body news and something like that. वो थोड़ा सा पूछते हैं in phase 2, but phase 1 के लिए not required. So now coming to English में you should purchase mock test. उसी से आप उतना कर लो. English में important is like comprehension. बहुत easy होता है. 2 पैरास का comprehension होता है. You can easily solve it and very बहुत ज़्यादा easy होता है. Don't miss that part. Okay, it is not like RBI grade B which is very tough. ऐसा नहीं है. वो comprehension बहुत easy होता है. And close test और थोड़ा सा वो what we call it, I'll tell you, wait. Close test, एरर डिटेक्शन, पैराजम्बल्स, ऑल ऑफ दिस इज इंपॉर्टेंट एंड इज़ वेरी वेरी सिंपल वन लाइनर. तो आप ये इजीली कर सकते हो मॉक टेस्ट के थ्रू. डोंट नीड एनीथिंग. मॉक टेस्ट आई टेल यू, इफ यू आपको सिर्फ मॉक टेस्ट लेना है तो यू टेक इट फ्रॉम ऑलिव बोर्ड. अगर आप एडुटैप या फिर क्रैक ग्रेड भी ले रहे हो ना, तो यू डोंट नीड मॉक टेस्ट अलग से. बट अगर आप अनुजिंदर सर का कोर्स ले रहे हो तो आप एक मॉक टेस्ट जरूर लो, ऑलिव बोर्ड का या फिर किसी का भी. बिकॉज आई पर्सनली थिंक, नो क्रिटिसिज्म, आई पर्सनली थिंक अनुजिंदर सर का मॉक टेस्ट थोड़ा सा वीक है. दे नीड टू वर्क ऑन दैट. ऐसा नहीं है कि आई एम क्रिटिसाइजिंग देम, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, बट ये सच ए फीडबैक है. इट्स नॉट वेरी, आई डेंट फाइंड इट वेरी हेल्पफुल टू बी ट्रू. एंड
but I'm sorry, but that's the truth. And so that was about English. And for quant I will suggest that you study through YouTube. अगर आप एक फ्रेशर हो, you don't know anything about quant, सर्च द टॉपिक दैट आई टेल यू कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है ऑन यूट्यूब. एंड कोई भी टीचर हो, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप कोई स्पेसिफिक टीचर से पढ़ो. आई थिंक एवरी टीचर अपना बेस्ट ही देते हैं, कोशिश करते हैं कि से अच्छा वो टीच करे. एंड दैट इज़ हेल्पफुल टू यू बिकॉज अल्टीमेटली दे ऑल्सो नीड टू ग्रो. तो ग्रो के लिए तो वो लोग तो अपना बेस्ट देंगे. सो बट फिर भी एक टीचर जिनसे मैंने किया था वो थे नवनीत सर बाय वायरल मैथ्स. ही वॉज रियली गुड. Now I'll tell you few important topics for quant. I have mentioned those here. And see, the most important is quadratic equations, number series, and simplification approximation. Please do simplification approximation. It is very easy. And मेरे को चारों सेक्शन में सबसे इजी क्वांट लगता है बिकॉज आई थिंक कि क्वांट इज़ वेरी वेरी इजी जो सेबी में पूछते हैं. एंड नेगेटिव मार्किंग का तो उसमें गलत होने का चांसेस कुछ भी नहीं है बिकॉज इधर यू विल मेक इट राइट और रॉन्ग. रीजनिंग में फिर भी ऐसा हो सकता है कि आपको लग रहा है आंसर सही है पर वो रॉन्ग हो सकता है बिकॉज क्रिटिकल रीजनिंग कुछ भी हो सकता है. अदरवाइज ऑल्सो सिलोजिज्म यू कैन टेक द असम्पशंस रॉन्ग. बट क्वांट में ऐसा चांसेस बहुत कम है. दैट्स व्हाई सी कि क्वांट इज अ रियली वेरी वेरी स्कोरिंग टॉप सब्जेक्ट इन सेबी. एंड यू शुड नॉट लीव दैट. अप्रॉक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, नंबर सीरीज, डी आई करने के लिए यू नीड टू नो एटलीस्ट रेशियो एम टेनिंग, परसेंटेजेस, फ्रैक्शंस. ये सब आप नवनीत सर का अडर 247 और इन्हीं टीचर जो आपको अच्छा लगते हैं. लाइक 2 hours you can study quant every day, 2 hours, and the next day you can study 2 hours reasoning. Like that you can make a timetable for yourself and you can cover. So if you cover the percentages, ratios, averages, आपका सारा DI बन जाएगा. DI is also very 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 simple level. And quant is really easy in SEBI. I think the quant सबसे scoring होते हैं apart from English and quant both is very scoring. And reasoning, for reasoning again I'll recommend you YouTube channel. एक टीचर जिनका मैंने रेफ़र किया था वो थे सौरभ सर अड्डा 247 के. वो भी अच्छे सिंपल लैंग्वेज पढ़ाते हैं. इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. बट स्टिल आई प्रेफर क्वांट मोर देन रीजनिंग बिकॉज ऐसे कोई सेक्शनल तो चाहिए नहीं. यू हैव टू जस्ट कवर 30 मार्क. एंड आई फोकस मोर ऑन इंग्लिश एंड क्वांट बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि इन दोनों में नेगेटिव जाने के चांसेस कम है मेरे. एंड रीजनिंग आई प्रेफर अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़. ये जनरली मेरे सही हो जाते हैं एंड में गलत नहीं होते हैं. डायरेक्शन एंड डिस्टेंस ये सही हो जाते हैं. ब्लड रिलेशंस नहीं, आई डोंट बट हाँ इसमें इजी पूछते हैं. सेबी के लेवल बहुत इजी होता है, इसमें क्या गलत जाएगा. सो आई विल टेल यू फ्यू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर रीजनिंग. सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं. एंड देन क्रिटिकल रीजनिंग एकदम बेसिक वाले. एंड डायरेक्शन, डिस्टेंस, ब्लड रिलेशंस ये सब आप कर लो थोड़ा थोड़ा. when you watch the videos don't go for difficult one because पूछते ही नहीं सेबी में वैसा. सेबी में the basic one or the moderate one, maximum you can do this 2 levels, that's enough, more than enough. So you have to target all that I have mentioned till now. It is more than sufficient for you to score more than 50 out of 100 in paper 1. and आपको target करना चाहिए उतना because the most important exam that we are writing after RBI. सो वी नीड टू मेक श्योर दैट कि कहीं भी ऐसा ना हो कि बाई चांस यू गो आउट फ्रॉम फेज 1 इटसेल्फ. ऐसा होता है. आई हैव सीन स्टूडेंट गेटिंग 29 एंड दे फेल बाय 1 मार्क. ऑन टोटल में बहुत अच्छा होता है उनका, 100 से भी प्लस होता है. बट बिकॉज ऑफ दिस पेपर 1 दे आर नॉट एबल टू क्लियर. सो प्रैक्टिस क्वांट एवरी डे 2 hours and the other day reasoning 2 hours. and कोई भी टीचर जो आपको पसंद हो. एंड ओनली द बेसिक्स, बिगनर लेवल और द मॉडरेट लेवल यू नीड टू प्रैक्टिस. जो 4-5 चैप्टर्स मैंने बताया, जब मैं फिर से आपके लिए रिपीट कर देती हूँ. सिलोजिज्म, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन, डिस्टेंस, इनइक्वालिटीज इन रीजनिंग, ऑल्सो क्रिटिकल रीजनिंग. पर फिर भी आप अटेम्प्ट करने से डरो अगर आपको 100% श्योर नहीं हो क्योंकि क्वेश्चंस और भी है जो इजी है. एंड टाइम तो आपके पास लिमिटेड है 60 मिनट्स. बट आई थिंक 60 मिनट्स इज सफिशिएंट टू यू टू कवर मोर लाइक मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस. सो अब क्वांट आई विल रिपीट फॉर यू वंस अगेन. इज number series, quadratic equations, simplification, approximations, the most important chapter, and quadratic equations ये दो is the most important chapter. simple interest, PNL, percentages, ratios ये सब आप कर सकते हो. इससे आपको एक आधा नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा and that will be helpful for you to solve more and more questions in quant. So
ये हो गया फेज़ 1 का स्ट्रेटजी. ऑल्सो यू शुड अटेम्प्ट मॉक टेस्ट फॉर पेपर 1 स्पेशली. पेपर 2 में इट्स नॉट रिक्वायर्ड मच, बट पेपर 1 में यू विल बी एबल टू सॉल्व मोर क्वेश्चन, बिकॉज अल्टीमेटली क्वांट रीजनिंग में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए बिफोर अपियरिंग फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन. नाउ अब इसके बाद भी आपके पास डाउट रहेगा, आई नो दैट डाउट रहता है आपके पास. एंड आई लाइक टू मैंशन दैट इसके बाद भी जो डाउट है प्लीज़ आस्क मी इन द कॉमेंट सेक्शन. And we will now be moving to paper 2. Paper 2 is now of 100 mark, and it consists of 50 questions. Paper phase 2 में 100 questions 100 mark, phase 1 में 50 questions they ask. लेवल क्या रहेगा क्वेश्चन का? इफ आई टेक यू थ्रू फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस, तो आई रिमेंबर इज इनमें से कौन सा इज नॉट रेगुलेटेड बाय आरबीआई. ये क्वेश्चन था पिछले सेबी वाले एग्जाम में. तो इतने इजी लेवल के क्वेश्चन दे आस्क इन फेज 1. एक क्वेश्चन और था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल. सो ऑफकोर्स डबल एंट्री बुक कीपिंग. इजी क्वेश्चन दे आस्क इन फेज 1 फॉर 2 mark, and it is like a cakewalk for people from finance background. But for non-commerce, it is, of course, you need to learn, you need to be aware of that, and for that you need to study, you need to work hard. SEBI is I think a very good opportunity. जो लोग भी फाइनेंस में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो टेक इट सीरियसली एंड गिव इट योर ऑल, गिव इट योर एफर्ट्स. I am also going to appear for this year, but still I'm telling you all this because I want you to perform good. I have opened this channel in order to help you all, because I know what is the pain of failing, and I have also failed last year in SEBI. So I know कि बहुत बुरा लगता है, and I want to guide you all जितना possible हो. Now if I talk about phase 2, paper 2 phase 1, and there are 6 subjects. So each subject मेरे को इसका इनके sources नहीं पता. Okay, I took the PDFs, like phase 1 I didn't study, but phase 2 I took the PDFs and read all the content in that. That was all that the resources I had. और इसके अलावा I will not be able to tell you anything more कि आप कहाँ से free resources ले सकते हो. या तो आपके पास अभी तक होना चाहिए था, बिकॉज आप लोग ने अभी तक कलेक्ट कर लिया होगा. यू ऑल आर वेरी फास्ट. बट अगर आपने कलेक्ट नहीं किया है, एंड तो आई विल रिकमेंड कि आप लोग ले लो यार PDFs वगैरह. और बुक्स जनरली आई डोंट रिकमेंड, बिकॉज बहुत लेंदी हो जाएगा. हाउ विल स्टडी इन सच लेस टाइम? यू ऑल्सो हैव टू रिवाइज, बिकॉज रिविजन इज़ द की. ऑल्सो आपको मेक श्योर करना है कि आप जब फेज़ 1 का एग्जाम दो तो आप श्योर हो कि यू आर गोइंग टू गो इन फेज़ 2, बिकॉज आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है. जनरली टेक्स 5-10 days फॉर द रिजल्ट टू बी आउट, एंड 5-10 days इज अ लॉट. लाइक 1/3 ऑफ द टाइम यू गेट टू स्टडी फॉर फेज़ 2, 10 days. तो आपको उसमें अच्छे से अच्छा परफॉर्म करना है, एंड यू डोंट हैव टू वेस्ट टाइम वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स. Like I am wasting my time right now waiting for their phase 1 result, then I'll start my preparation for phase 2. Don't do that. I have done it. I'm exceptional cases. My thing is like next level. That's why I have named my channel Viewer Tales, because all my things are weird. So important chapters for phase 1 जिसमें आपको focus करना है. So see, for commerce and accounting, first I'll tell you, accounting as a financial information system, not so important. You need to know accounting standards. इसमें से कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फेज 2. आई विल टेल यू इन दैट दिस थिंग इन फेज 2 वीडियो. एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट इज इंपॉर्टेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट इज इंपॉर्टेंट. ऑल ऑफ दिस इज इंपॉर्टेंट. रेशियो एनालिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डायरेक्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे आस्क इन फेज 2. फेज 1 में न्यूमेरिकल क्वेश्चन आई डोंट रिमेंबर पूछते हैं कि नहीं, बट फेज 2 में 100% दे आस्क. 10 क्वेश्चन, मिनिमम 10 क्वेश्चन दे आस्क. सो रेशियो एनालिसिस से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, एंड इन कॉमर्स एंड अकाउंटिंग, तो वो आपको फेज 2 के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं. एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, ऑफकोर्स ऑल दिस इज वेरी लाइक टीडियस चैप्टर है. दे विल आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम इन फेज 2. अभी आया था बायबैक से क्वेश्चन लास्ट ईयर. प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कंपनी फाइनल अकाउंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इससे बेसिक क्वेश्चन आ सकते हैं कि किस हेड के अंदर क्या आता है. फेज 1 में भी आ सकता है इसके बारे में. फिर भी देखो आपको सब कुछ पढ़ के जाना पड़ेगा फेज़ 1 के लिए भी. ऐसा कुछ टॉपिक्स है जो फेज़ 2 के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वैसा आई कैन टेल यू फ्यू टॉपिक्स लाइक जैसे रेशियो एनालिसिस, पर ऐसा नहीं है. इससे थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है फेज़ 1 में, एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है फेज़ 2 में. तो ये चैप्टर ओवरऑल ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बायबैक इज़ इंपॉर्टेंट, फाइनल अकाउंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट. ये से कुछ भी कहीं भी कोई भी स्टेज में क्वेश्चन आ सकता है. तो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. यू हैव टू कवर इट नाइसली. Management is very very scoring topic.
It is equally important in phase 1 and phase 2 management. So it will help you clear phase 1, revise it again and again. Management, very important. All the topics, the most important if I talk about is management functions. Of course, everything: planning, organizing, staffing, directing, controlling. Role of a manager, leadership styles of leadership is very very important. Then mm, communication is very important. Every part of communication, everything you have to study properly. Don't miss anything out. Study properly. You are very very fortunate that you're getting an opportunity to write such exams, such big level exams that will help you get it as a SEBI officer. It's a very big opportunity, and you should give your true efforts. Okay. Finance, again, regulatory body is very important. Primary, secondary market, very important. All of this is very important for phase 2. Derivatives, very, very, very important. Financial inclusion, very important. Alternative sources of finance, important. Rest all you can do, you can leave, like direct and indirect taxes, GST, finance commission. Depends on you. But the topics which I mentioned before is very important for phase 2. For phase 1 also, I'll tell you that cover everything. Finance and management, don't leave any topic. In phase 1 also, don't leave any topic. Again, I'm saying don't leave any topic. It is very important. It will make you pass the exam. So now for costing, I'll talk about that. Costing is a subject that is not very much important for phase 1 और phase 2. ऐसा नहीं है कि इसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ऐसा भी नहीं है कि you need to leave it. No, you can leave it for phase 1, but phase 2 के लिए important है, because phase 2 के लिए एक एक mark important है. If you take the last year story, I got just 1 mark below the cutoff, final cutoff, 1 mark below. बट उस 1 mark के बीच में भी देवर 7 कैंडिडेट्स, 7 लोग थे. आप इमेजिन करो कि किस किस पॉइंट के डिफरेंस में लोग थे. सो एक मार्क इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन सच एग्जाम्स. यू कैन नॉट लीव एनीथिंग इन फेज 2. आई एम टेलिंग यू. फेज 2 का स्ट्रैटेजी अगेन हम मेकिंग इन द सेम वीडियो ऑल्सो. बट फेज 1 यू कैन लीव कॉस्टिंग, बट नॉट इन फेज 2. कॉस्टिंग का अगर आप फिर भी अगर आपको कुछ नहीं आता ना, लीन सिस्टम ज़रूर करो. लीन सिस्टम से क्वेश्चंस आते हैं. लीन सिस्टम इज द ईजीएस्ट, लाइक इंट्रोडक्शन टू लीन सिस्टम, जस्ट इन टाइम, काइजन कॉस्टिंग, 5S. इट्स वेरी 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 ईजी एंड वेरी स्कोरिंग. आप गलत नहीं जाओगे इस पर, ट्रस्ट मी. एटलीस्ट इतना आप कर लो फॉर फेज 1 इफ़ यू आर नॉट एबल टू कवर एवरीथिंग. बाकी तो सब आपको करना ही है फेज 2 में, कुछ भी नहीं छोड़ना. एंड 6 सिग्मा, ये तो 6 सिग्मा भी PFRT में भी आया था कि 6 सिग्मा कितने डिफेक्ट्स होते हैं. तो इट इज़ लाइक 3.4 मिलियन डिफेक्ट्स. इनोवेशन एंड BPR लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था 2024 में सेबी का. इन फेज 2 ये क्वेश्चन मेरा गलत हो गया था. सो ये इंपॉर्टेंट है अगेन फॉर फेज 1 फेज 2. बट अगर सिर्फ कॉस्टिंग में कुछ करना है तो लीन सिस्टम एंड इनोवेशन करो, डोंट लीव इट. कंपनीज एक्ट अगेन वेरी नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. आई टेल कंपनीज एक्ट एज, देखो एक तो डेट्स वगैरह उतना याद रहता नहीं है. सो आई नॉट टेल यू कि ये सबसे इंपॉर्टेंट है. बट अगेन यू नीड टू कवर एवरीथिंग फॉर फेज 2. बट फॉर फेज 1 अगेन यू कैन डू फ्यू चैप्टर्स. ठीक है ना. जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से रिलेटेड सारा चैप्टर, powers and duties of board of directors, remuneration of board of directors, appointment of directors, and women directors. बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, सब आपको फेज 1 में भी करना है. यू कैन नॉट लीव इट. एंड फॉर इकोनॉमिक्स यू नीड टू कवर द बेसिक माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट, एंड जिसमें आ जाता है डिमांड सप्लाई, मार्केट स्ट्रक्चर, नेशनल इनकम, कॉन्सेप्ट एंड मेजरमेंट. नेशनल इनकम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फेज 1 ऑल्सो. क्वेश्चन इसमें न्यूमेरिकल्स के फेज 2 में आते हैं. तो यू हैव टू सॉल्व वेरियस टाइप ऑफ नेशनल इनकम, जैसे कि आउटपुट बेस्ड होते हैं, प्रोडक्ट इनकम बेस्ड होते हैं, एंड एक्सपेंडिचर बेस्ड होते हैं. सब तरह के दे कैन आस्क. ऑल्सो दे कैन आस्क द पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, प्राइवेट इनकम, ये टाइप के होते हैं. एंड ऑल्सो द NNP, GDP, एवरीथिंग दे कैन आस्क यू टू कैलकुलेट. बट ये मोस्टली फेज 2 में आते हैं. For phase 1 you need, even then you need to know the theoretical definition, so that you are able to mark the answer correctly. So economics you need to cover. And again balance of payment, foreign exchange markets, इन्फ्लेशन, मॉनेटरी, फिजिकल पॉलिसी. चांसेस है इनमें से क्वेश्चन आ सकता है, पर 50 क्वेश्चन जहाँ पर है वहाँ पर कितना क्वेश्चन किससे आ जाएगा. But still you don't have to think about phase 1, you have to think about phase 2 while covering this all 6 topics. You have to cover it like anything. It is competition is really brutal. You have to be the best of best to get selected for interview. So abhi for phase 1 if I tell you, the most important is management, cover it at first priority. Second is finance, of course. Third is costing, cover at least lean system. Companies Act, cover it, it's very important. And
fifth is accounting and commerce, last is economics. If you have time, cover it. And again, for economics you can refer to NCERT books of 11 and 12, but again that is very lengthy yaar. Why you want to go that way? Cover it from PDFs. If you don't have, buy it. If you think it's very costly, then you can tie up with like one or two of you and purchase it. It will save a lot of time of yours, and you can invest that time in revision. Again, mock test is very useful in this. You will get to know कि आप कहाँ पर आपको और पढ़ना चाहिए. कई बार हम ना वी गो थ्रू सेंटेंसेस बट वी डोंट रियलाइज कि इससे क्वेश्चन बन सकता है. बट मॉक टेस्ट में आपको पता अच्छा इससे भी क्वेश्चन आ रहा है, तो यू नीड टू रीड ईच एंड एवरी सेंटेंस केयरफुली एंड यू नीड टू एनालाइज कि किससे कैसा टाइप का क्वेश्चन आ सकता है. वो मॉक टेस्ट के थ्रू आपको पता चलेगा. मॉक टेस्ट इज इंपॉर्टेंट, यू नीड टू कवर दैट. एंड यहाँ पर आपको टारगेट करना है आउट ऑफ 50 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन मस्ट बी राइट. तो आपको डायरेक्ट 60 मार्क्स मिलेगा. 60 मार्क्स मिलेगा एंड मे बी आप 35 अटैम्प्ट करते 5 नेगेटिव जाएगा. ऐसे करके कुछ 50 तक आपको आ जाएगा आराम से. 50 इसमें आ जाएगा, 40-50 उसमें आ जाएगा, तो आराम से आपका 100 मार्क्स बन रहा है ना. 50 भी इसमें नहीं डालना. ट्राई 60. 60 इज ऑल्सो वेरी ईजी, बट स्टिल इफ यू नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड, I have mentioned all the topics that you need to cover, and 50 to 60 marks you should target in face this paper. It is very very easy because सच बोलूँ तो 30 मार्क्स लाना फिर भी एक इससे टफ है देन क्वांट रीजनिंग एंड इंग्लिश इफ़ यू फॉर कॉमर्स बैकग्राउंड. बट अगर आप इंजीनियर बैकग्राउंड से तो आपको पहला फेज में शायद आ जाएगा इतना मार्क्स. आपको इस फेज में पेपर में थोड़ा सा डर लगता होगा. तो लाइकवाइज यू कवर जहाँ पर आपका स्ट्रेंथ एंड वीकनेस कैरी करता है, ट्राई करता है. यू कैन स्विच बिटवीन द टॉपिक्स एंड यू कैन स्टडी लाइकवाइज. बस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. एंड phase 1 is qualifying, I know that, but don't take it lightly. If by mistake, if you by chance if you miss phase 1, आपको बहुत regret होगा because it is really very easy to pass. बट कई बार जब पता होता है कि कोई चीज़ बहुत आसान होता है ना, तो वी टेक इट फॉर ग्रांटेड. डोंट डू दैट. वर्क हार्ड एंड थिंक दैट फ्रॉम द इनिशियल्स ओनली दैट थिंक दैट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर phase 2 एंड स्टडी लाइकवाइज. टाइम टेबल आपका ऐसा हो सकता है कि आप रोज़ एक दिन 2 घंटे क्वांट, एक दिन रोज़ 2 घंटे रीजनिंग एंड एक मॉकअप लगा रहे हो. 1 डे फॉर पेपर 1, 1 डे फॉर पेपर 2 एंड देन एनालाइजिंग. ऑल्सो इसके अलावा जो टाइम आपको बच रहा है उसमें आप 1 घंटा जनरल अवेयरनेस आप देख सकते हो क्लासेस, या फिर अपना सेल्फ स्टडी भी आप कर सकते हो अफेयर स्काउट का PDF से, या फिर आप कोई भी अगर कोचिंग भी ले रहे हो तो उसमें भी आपको PDF प्रोवाइड किया जाएगा. एंड रिवाइज अगेन जैसे आपको समय मिल रहा है उसके बीच में आप स्टडी करो पेपर 2 के लिए. इस वीडियो में मैंने जो भी आपको बताना था phase 1 के बारे में मैंने बता दिया है. नाउ आई टेल यू फ्यू थिंग्स दैट यू हैव मेंशन इन योर माय लास्ट वीडियो, तो वो मैं टेकअप कर लेती हूँ. बट आई डोंट नो आई विल गेट द चांस अगेन और नॉट. सो जनरल अवेयरनेस सोर्सेज आई हैव मेंशनड, phase 1 strategy I have mentioned, and material I can't send you. See, it's a paid material. If I send paid material, it's not ethical on the coaching institute because वो लोग बहुत मेहनत करते हैं उस मटेरियल को बनाने के लिए. One person buys it and distributes it everywhere, so it is not fair on their part. So I'll not do that. Don't please understand that thing. And shall I take Anuj Jindal's crash course, as there is only 2 months to exam? I am a CSO. Will that be helpful? Yes, it is helpful. And यार बहुत आउट से यार, दिस वीडियो इज गो रियली लॉन्ग. ओ माय गॉड. तो इतना ही था इस वीडियो में एंड इतना ही मुझे आपको बताना था. बट इसके अलावा भी कुछ हो सकता है कि मिस हो गया होगा, तो प्लीज़ ट्राई दैट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई होप कि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए, आप अच्छा करो, phase 2 तक जाओ, phase 2 से इंटरव्यू में जाओ, इंटरव्यू से सेलेक्ट हो जाओ. ऑल दैट आई वॉन्टेड टू से टू यू एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू.